एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम था उसका इंट्रोडक्शन देखा एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स स्टडी किया। इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स देखने वाले हैं। इससे पहले रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उसका एक छोटा सा हम रिकैप कर लेते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? The numbers in the form of p by q, where the value of q should not be equal to 0, those numbers are rational numbers. But if you have to identify whether the given number in the form of p by q is a rational or irrational, what you have to do is you have to divide numerator by denominator, है ना? Then what you will get a decimal expression. Okay. If that decimal expression is terminating, मतलब if you are getting 0 as a remainder at any point of division, then what you can say that is terminating value. If you are getting a terminating value, then the given fraction or given number is a rational number. In cases when you will get non-terminating values, it means you are not getting 0 as a remainder, then you can say that this is rational or irrational. But rational and irrational, both numbers are non-terminating. Then to differentiate both numbers, what it is there, if the values are repeating itself, it means if your decimal expression given is repeating a number again and again, then you can say that it is recurring. For instance, I said that in the last video it was 2 by 3, and when you divide 2 by 3, then what you will get 0.6666, and it is not ending, you're not getting 0 as a remainder. So यहाँ पे 0.66666, 6 is getting repeated, it means this is a non-terminating recurring number. Then you can say that this is a rational number. If you get a number kind of like 0.4142861 like this, where a single number is not getting repeated and the number is not even ending, then you can say this is non-terminating and non-recurring, hence the number given is an irrational number. Okay, so this is the difference between rational and irrational, and this is how you are going to identify whether a number given to you is a rational or an irrational number. Okay, I hope आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इस चैप्टर में अब इस वीडियो में हम लोग कुछ लॉज देखेंगे। लॉस कौन से होते हैं? हमने पुरानी प्रीवियस क्लासेस में जब हमने इंटीजर्स चैप्टर पढ़ा होगा उसमें भी हमने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। बेसिकली 3 रूल्स होते हैं जो कि हम एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करते हैं। सिमिलरली रैशनल और इरैशनल नंबर्स पे भी वो रूल्स अप्लाई होते हैं। रूल्स कौन कौन से हैं? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव हमने पढ़ा था, क्या होता है? a plus b is equal to b plus a, है ना? If you interchange the position of two numbers, then the answer you are obtaining is not going to change. Then this value, this rule is known as commutative. This is applied on addition and multiplication. क्योंकि आप जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस और माइनस में आंसर आता है, तो आप डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में रूल अप्लाई नहीं करते हैं, हम इसको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करते हैं। तो ये रूल इंटीजर्स के साथ साथ या फ्रैक्शंस के साथ साथ हमारे रैशनल नंबर्स पे भी अप्लाई होता है, इवन इरैशनल नंबर्स पे भी होता है। दूसरी चीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इज इफ यू ऐड a plus b and then you add a number c, or if you add b plus c and then you add a to that number, मतलब सबसे पहले मैं a और b को ऐड करूं फिर c ऐड करूं, या मैं पहले b और c को ऐड कर दूं फिर a को ऐड करूं, the product I am getting is will be same. Okay, the product or the sum, क्योंकि यह मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट और सम इज नॉट गोइंग टू चेंज. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज, इफ a into b plus c is there, then the value of a into b plus a into c, this is not going to change, है ना? The value of a into b plus c will be equal to a into b plus a into c. This is distributive property. ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इस चीज को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस आपको ये लॉज याद रखने हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स ये 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं. ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है. दूसरा, now the next part is, if you add or subtract or multiply or divide two rational numbers, if I'm having two rational numbers, one is p by q and second one is m by n, इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूं, चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, जो मुझे यहाँ पे
आंसर मिलने वाला है वो आंसर भी क्या होगा मेरा, रैशनल नंबर्स. If I am adding, subtracting, multiplying or dividing two rational numbers with each other, then the answer which I am getting will also be a rational number. Okay, this was the property for rational number. But in cases of irrational number, what happens is when you add or subtract, multiply or divide two irrational numbers, then the answer you get is not definite whether it will be a irrational or rational number. रैशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने में तो आपको रैशनल मिलेगा, बट इरैशनल है अगर दो नंबर्स उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका जो आंसर है वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है. एग्जांपल देखते हैं. मेरे पास एक नंबर है √3. ठीक है, दिस इज एन इरैशनल नंबर. मैं इसको √3 एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. मुझे मिल रहा है 3. √3 into √3 3 हो रहा है. 3 क्या है, रैशनल नंबर है. तो दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके आपको जो आंसर है वो आपको इरैशनल भी मिल सकता है. नॉट सेइंग कि ऑलवेज रैशनल होता है. आप ऐसे देखो, आप √2 into √3 करोगे तो आपको √6 मिलेगा. √6 क्या है, इरैशनल है. तो दो इरैशनल या रैशनल, जब दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है. ठीक है, तो इरैशनल के केस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो सॉल्व करने के बाद ही अपन को पता चलेगा. इवन इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं √5 माइनस √5 करूँ, दोनों इरैशनल है, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0. 0 क्या है, रैशनल नंबर है. इसको 0/1 लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है तो ये एक रैशनल नंबर है. माइनस करने में भी आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है. तो you cannot predict after applying any operation to any two irrational numbers which type of number you are getting, irrational or rational. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हो जाती है कि जब आप एक रैशनल और एक इरैशनल पे कोई ऑपरेशन करो. आपके पास एक नंबर रैशनल है, दूसरा इरैशनल है. इसको अगर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, इरैशनल ही आएगा. ठीक है, रैशनल नहीं हो सकता. 3 चीजें आप लिखोगे. रैशनल के साथ कोई ऑपरेशन किया, मैं यहाँ ओ लिख देती हूँ, ऑपरेशन किया रैशनल के साथ तो आपका आंसर मिलेगा रैशनल. इरैशनल के साथ आपने कोई ऑपरेशन किया इरैशनल के साथ तो आपका आंसर इरैशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है. ठीक है, ओ जो है ना ऑपरेशन है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने ओ लिख दिया सिंपल सा. अगर आप एक इरैशनल टर्म को ऑपरेशन किसी एक रैशनल के साथ कर रहे हो तो आपको हमेशा एक इरैशनल टर्म ही मिलेगी. ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा रेडिकैंड. आप लोगों ने जब स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने इस तरीके के एक साइन का यूज किया होगा, है ना. ये जो साइन होता है हमारा, इसे हम कहते हैं रेडिकल, RADICAL, रेडिकल. अब इस रेडिकल के अंदर हम कुछ टर्म्स लिखते हैं, है ना. सपोज मैंने लिखा 4, ठीक है, या फिर मैंने ऐसे लिख लिया 5 और मैंने ऐसे रूट का साइन लगा दिया. वैसे जनरली हम इसे रूट कहते हैं, है ना. स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, अगर मुझे 4th टर्म में निकालना है तो 4th रूट हो जाएगा, 5th के निकालना है तो 5th रूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो टर्म्स होते हैं जो इन रेडिकल्स के अंदर आते हैं, जैसे 4 और 5, ये नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हो सकते हैं. तो these natural numbers or integers which came under a radical sign, these terms are known as radicand. इन टर्म्स को हम कहते हैं radicand. ओके, ना अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट भी हो सकता है. तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे 2, जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ 3 लिख दिया, 4th रूट निकालना है मान लो किसी टर्म का तो यहाँ पे 4 लिख दिया. तो ये जो नंबर्स होते हैं जो मुझे बताते हैं कि किस टाइप का रूट अंदर निकलने वाला है, ये जो टर्म्स होते हैं इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रेडिकल. ये साइंस रेडिकल होते हैं. अभी जो रेडिकल साइन है इसके अंदर जो ऑपरेशन होगा वो किस टाइप का ऑपरेशन होने वाला है, ग्रुपिंग कितने नंबर्स की होने वाली है, वो हमें कौन बताता है, ये नंबर्स. ओके, तो दीज नंबर्स आर नोन एज ऑर्डर ऑफ द रेडिकल. ओके, अब ऑर्डर, रेडिकल और रेडिकैंड. This sign is radical, this number is radicand
एंड दिस इज ऑर्डर। ये तीनों का जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं सर्ड, SURD, सर्ड। ओके, तो अभी इसके लिए आपको ये तीन चार टर्म्स पता होने चाहिए, रेडिकैंड, रेडिकल, ऑर्डर एंड सर्ड्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स देख लिया अपन ने, रूट वाली जो वैल्यूज होती हैं जो कि हमें सॉल्व करने पे इरैशनल टर्म्स देंगी, वो होती हैं रेडिकल्स। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होंगे? सिंपल लॉज जो कि हम अपने इंटीजर्स पे अप्लाई करते हैं, वही लॉज हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट लॉ इज व्हेन यू मल्टीप्लाई टू रेडिकल्स लाइक दिस, रूट a इंटू बी है, मतलब जैसे अगर ऐसा है कि रूट 2 इंटू रूट 3 है इस तरीके से, तो आपका आंसर रूट 6 आएगा। बट अगर आप इसको अलग अलग करो, आप रूट 2 इंटू रूट 3 करोगे तो भी आपका आंसर रूट 6 ही आएगा। मतलब रूट एक ही रूट के अंदर अगर आपकी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और आप अलग अलग रूट्स में टर्म्स को लेके और फिर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, योर आंसर इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये वैल्यूज जो है, ये जो रूल्स हैं, लॉज हैं, ये अपन नॉर्मल टर्म्स पे भी अप्लाई करते हैं। सिमिलरली जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे डिवीजन के लिए भी है कि अगर दो टर्म्स हैं डिवाइड हो रही है, फिर आप उनका रूट लो या पहले रूट ले लो और फिर उनको डिवाइड करो, आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पे क्या है, 2/3 है, 2/3 डिवाइड कर लो, उसका रूट लो, यहाँ पे पहले रूट 2 की वैल्यू लिख लो, रूट 3 की वैल्यू लिख लो, उनको डिवाइड करो, आंसर विल बी सेम। अब यहाँ पे जो रूल है a प्लस बी, a माइनस बी, देखो ये जो रूल है ना, ये अपन ने पढ़ा है, अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ा है। सेम चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a यहाँ पे क्या था, रूट a था, तो यहाँ पे होना चाहिए था रूट a स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर, ये ऐसा होगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो ना तो आपको सिंगल टर्म मिलती है ना। रूट का जैसे मैंने किया, रूट 2 का मैंने स्क्वायर लिया, मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिंपल 2 मिलेगा। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सिंपल सा 2 मिल गया। तो यहाँ पे इसके अंदर रूट का स्क्वायर जो है वो a ही होता है, इसलिए यहाँ पे इसको a माइनस बी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड जो लॉ है हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ इज सेम, बस यहाँ पे रूट a को हटा के a कर दिया है कि a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, तो ये भी इरैशनल टर्म्स है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, a इंटू a स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर क्या था, रूट b स्क्वायर, रूट b स्क्वायर क्या होता है अपना b, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया b। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी अपनी a प्लस बी होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पे क्योंकि रूट था, रूट का स्क्वायर सिंगल नंबर होता है, इसलिए रूट a स्क्वायर की जगह a लिख दिया, रूट b स्क्वायर की जगह यहाँ पे b लिख दिया, और 2ab की जगह तो अपन ने a की वैल्यू रूट a, b की वैल्यू रूट b है, तो a भी लिख दिया। ठीक है, सिंपल नॉर्मल जो आइडेंटिटीज हम नॉर्मल इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स पे लगाते हैं, वही सेम आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे इरैशनल नंबर्स या फिर रेडिकल्स पे यहाँ पे हमने अप्लाई करेंगे। एक लास्ट आइडेंटिटी और देख लेते हैं, व्हिच इज इफ टू नंबर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास एक बायनोमियल है, एक और बायनोमियल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। यहाँ क्या था, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, बट यहाँ पे अगर नंबर्स डिफरेंट हैं तो आप सिंपल जो बायनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल अप्लाई करते हो, आप पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, रूट a इंटू रूट सी हो गया, फिर रूट a इंटू रूट डी हो गया, फिर रूट b इंटू रूट बी सी हो गया, एंड रूट b इंटू रूट डी हो गया। ठीक है, सिंपल ही किया, और आप इसको फिर ऐड सब्ट्रैक्ट बाद में जो भी मल्टीप्लिकेशन करके अगर वैल्यू सेम आती है तो आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दीज वर द लॉज ऑफ रेडिकल्स, जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके बहुत काम आएंगे। तो हमने दो वीडियोस करी, इन दोनों वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड लॉज देख लिए। इन लॉज को यूज करते हुए अब अपन को आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एप्लीकेशन पार्ट, मतलब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का काम है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के रखनी है। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए, इनको पढ़ के रखिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।